ऑफ द ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो वो हमने बाकी देख लिया कि हाउ the symmetry of the molecular orbitals that one is changing. Okay, so for example we are having psi1. So psi1 orbital with the lowest symmetry, with the lowest energy, it's having all the orbitals, okay, they are facing each other, all the orbitals they are symmetric. Then from psi1 to psi2, psi3, psi4, so psi2 is having one node. Okay, so at the node the orbitals they are changing their symmetries. Okay, so that we have done for 4n pi system and for 4n plus 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो वो हमने डिटेल में कर लिया। ठीक है, सो इन्हीं की सिमेट्री के बेसिस पे, ठीक है, देन वी विल प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ द रिएक्शंस। सो जो मेरा पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन की डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशंस और द ऑर्बिटल्स, कि आपके पास कौन सा ऑर्बिटल है, वेदर इट इज ए ब्यूटाडाइन सिस्टम है या हेक्साट्राइन सिस्टम है। ठीक है, सो बट प्रोडक्ट्स यू आर गोइंग टू हैव, ठीक है, वेदर इट विल बी ए सीज और इट विल बी ए ट्रांस प्रोडक्ट, सो दैट विल डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशंस। सो वेदर यू आर डूइंग रिएक्शन अंडर थर्मल कंडीशंस और यू आर डूइंग रिएक्शन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस। ठीक है, एंड द आउटकम ऑफ द प्रोडक्ट that can be predicted only with the help of a symmetry of the orbitals. Okay, and we make use of a concept of frontier molecular orbitals. So we are having different theories, okay, different theories of the pericyclic reactions. Okay, so for example, so conservation of molecular orbitals. So this is the theory of pericyclic reactions. So pericyclic reactions. So the conservation of molecular orbital. Okay. So, okay, the first one is the outcome of the reactions that depends upon the symmetry of the molecular orbital. जो molecular orbital की symmetry है, ठीक है, वो symmetry पे डिपेंड करता है कि mirror plane symmetry या C2 symmetry है। ठीक है, so and second one is, ठीक है, so the symmetry of the reactant is carry forward to the product. जो reactant की symmetry है, तो reactant की symmetry that is carry forward to the product. ठीक है, reactant अगर mirror plane symmetry है तो product में भी mirror plane symmetry आएगी, reactant में C2 है तो product में भी C2 symmetry आएगी। ठीक है, so that symmetry is always conserved. ठीक है, वो हमेशा रहेगी। ठीक है, तो वो आउटकम, तो अगर ऑर्बिटल्स की इफ उनकी सिमेट्री मैच कर रही है, ठीक है, इफ द सिमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल इज मैचिंग, देन द ट्रांजिशन इज द सिमेट्री अलाउड। ठीक है, कि अगर सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है, ओनली दैट ट्रांजिशन विल बी अलाउड, तो वो रिएक्शन अलाउड होगा। ठीक है, जब ऑर्बिटल अपोजिट सिमेट्री के फेस करेंगे आपस में एक दूसरे को। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस वन, दीस आर द ऑर्बिटल्स। सो अगर प्लस प्लस सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को फेस करेंगे, ठीक है, तो उस केस में दिस विल बी ए सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है, और अगर ये अपोजिट सिमेट्री के ऑर्बिटल फेस करेंगे आपस में एक दूसरे को, ठीक है, सो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस, so there will be no overlap, so there will be no bond formation, so it will be a symmetry forbidden process। यहाँ पे क्योंकि ऑर्बिटल्स की सिमेट्री जो है वो अपोजिट आ रही है। ठीक है, so this reaction it won't be applicable। ठीक है, so these are the symmetry rules which will predict the outcome of the reactions। ठीक है, ये symmetry rules हमेशा रहेंगे। ठीक है, so इन्हीं रूल्स को हम लोग frontier molecular orbitals में अप्लाई करेंगे। ठीक है, similarly we also apply them in the correlation diagram। so correlation diagrams में भी उसको भी डिटेल में करेंगे। इसमें भी जो symmetry of the reactants है, so that should match with the symmetry of the product, so and that should always be conserved। ठीक है, तो इसमें भी
हम एक टेबल बनाते हैं, इन दैट टेबल so we see the we put the symmetry elements of the reactants, from the reactants के symmetry elements और product के symmetry elements, and then we compare. ठीक है, तो उसमें कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद then we see whether the जो सिमेट्री है, ये जो रिएक्टेंट की सिमेट्री है वो प्रोडक्ट के साथ मैच कर रही है, ठीक है, तो क्या वो ग्राउंड स्टेट में मैच कर रही है या एक्साइटेड स्टेट में मैच कर रही है, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है, then we can predict the outcome of the reactions. If it is matching in the ground state, that means the reaction will be thermally allowed, ठीक है, और ये excited state में अगर वो सिमेट्री मैच कर रही है आपस में, then the reaction will be photochemically allowed, ठीक है, so that's another tool. Then we are having another theory, it's a perturbation molecular orbital theory, through PM approach, perturbations molecular orbital approach. So in this case too, so we have to see, we have to identify whether the system is aromatic or anti-aromatic, ठीक है, anti-aromatic है और aromatic है, तो उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि whether the reaction will be thermally allowed और photochemically allowed, ठीक है, तो उसमें anti-aromatic है वो photochemically allowed होंगे और जो aromatic सिस्टम है वो thermally allowed होंगे, तो ये भी हम डिटेल में देखेंगे, we'll start step by step, ठीक है, so first of all in the first we will discuss the frontier molecular orbital theory. Frontier molecular orbital theory में, so we will be using some terminology like Kohn rotation and disrotation, Kohn rotation and disrotations, ठीक है, so Kohn rotation और वो disrotation हम लोग आपस में ये स्टडी करेंगे, ठीक है, so Kohn rotation is when you are moving the orbitals in the same direction, ठीक है, ये आपके पास ऑर्बिटल है प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो जब दोनों के दोनों को आप सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, whether it is clockwise or anti clockwise, ठीक है, कि ये जब दोनों के दोनों ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, सो वी कॉल इट, ठीक है, ये ऑर्बिटल है दोनों, ठीक है, सो वेदर वी आर मूविंग देम ए क्लॉकवाइज, ठीक है, मेरे लिए क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, सो दीस ऑर्बिटल्स ये जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है, सो दिस रोटेशन वी कॉल इट ए Kohn rotation, ठीक है, सो इट मे बी क्लॉकवाइज और इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों, so this is a Kohn rotation. Similarly if we are having orbitals negative, so इस केस में जैसे अगर हम Kohn rotation करते हैं, Kohn rotation करेंगे अगर क्लॉकवाइज कर रहे हैं, so then we are having, ठीक है, सो ये पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, सो इन दिस केस यू कैन सी इन द Kohn rotation, so these opposite orbitals, the orbital with the opposite symmetry, they are facing each other, so it means this, so this process will be asymmetry disallowed, so it means कि Kohn rotation से आपके पास प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, similarly here you can see, ठीक है, so this rotation is when both the orbitals they are moving in the opposite directions, ठीक है, कि अगर एक आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, so they are moving in the opposite direction, ये मूव रहा है या फिर ये मूव कर रहा है, so either a clockwise anti clockwise और पहला एंटी क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज, ठीक है, so in that case this rotation is known as this type of rotation is a disrotation, ठीक है, so disrotation में you can see ये दो तरह से, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव फेस कर रहा है और डिसरोटेशन में अगर ये डिसरोटेशन इस तरह से आ रही है, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं, तो इन दैट केस so you can have so negative फेसिंग ईच अदर, ठीक है, so in this case too,
So because the orbitals with the same symmetry they are facing each other, इसमें सेम सिमेट्रिक ऑर्बिटल फेस कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, सो इट मींस दिस ट्रांजिशन विल बी सिमेट्री अलाउड, ठीक है। सो जहां पर सिमेट्री, ठीक है, ओवरलैप की जो ओवरलैपिंग हो रही है या ऑर्बिटल की सिमेट्री मैच कर रही है, ओनली दोस ट्रांजिशन दे विल बी सिमेट्री अलाउड, अदरवाइज अदर ट्रांजिशन विल नॉट बी सिमेट्री अलाउड, ठीक है। सो ये आ गया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस आपका कॉन रोटेशन से और डिस रोटेशन से क्या फर्क पड़ रहा है? एक तो आपने देख लिया कि यू कैन सी द ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स, कि जो दो ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है, आप उसको देख रहे हो कि वेदर दैट ट्रांजिशन इज सिमेट्री अलाउड और नॉट, कि वो उसमें सिमेट्री अलाउड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग विल बी लेट अस सपोज वन सब्स्टिट्यूट इज अटैच्ड हियर, लेट अस सपोज ये CH3 ग्रुप अटैच है यहां इस पोजीशन पे, ठीक है, CH3, ठीक है। तो जब आप ये डबल बॉन्ड यहां पे, तो जब आप इसकी डिसरोटेशन करते हो, ठीक है, हाँ बोर्ड का इशू है कुछ, नहीं दिख रहा है वो कुछ, ठीक है, हाँ बोलिए। कोई बोल रहा है कुछ क्या? सर अभी भी ब्लर है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा सा लिखता हूँ क्योंकि ये इसका इशू है। अभी मैं यहाँ पे कर्टेन लगाने के लिए बोला, कोई इन्होंने कर्टेन नहीं लगाया अभी, थोड़ा सा और एक बड़ा सा बना के, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मान लो हमारे पास है एक वी आर हैविंग दिस सिस्टम, ठीक है, सो पॉजिटिव नेगेटिव देन लेट्स डू दिस वन, ठीक है, और हियर वी आर हैविंग a substituent CH3H CH3 and H, ठीक है। तो इस केस में लेट अस सपोज वी आर हैविंग ए कॉन रोटेशन, अगर कॉन रोटेशन हो रहा है तो इट मींस दोनों के दोनों ऑर्बिटल वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये भी ऐसे जा रहा है और ये वाला ऑर्बिटल भी ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये प्लेनर है, मॉलिक्यूलर डबल बॉन्ड ये प्लेनर है, तो जब ये ऑर्बिटल ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो उसमें क्या होगा कि जो CH3 ग्रुप है वर्टिकली वो ऊपर आ जाएगा, CH3 ग्रुप ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला जब ये CH3 है, ठीक है, तो ये CH3 नीचे की तरफ चला जाएगा यहाँ से, जो इस प्लेन में है, तो जब ये हम ऐसे घुमाएंगे तो ये CH3 नीचे चला जाएगा। सो वी विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, तो ये क्योंकि इस तरफ चला गया, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, ठीक है। और जो मिथाइल ग्रुप है, सो मिथाइल ग्रुप आपका ये परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ पे, सो हियर यू आर हैविंग ए CH3, ये ऊपर आएगा और ये CH3 नीचे चला जाएगा, ठीक है। सो इट मींस सो दीस टू CH3 दे विल बी इन ट्रांस अरेंजमेंट्स, वो एक दूसरे से एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, तो ये ट्रांस अरेंजमेंट में चले जाएंगे। तो इस केस में जो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है, जो सब्स्टिट्यूएंट की वजह से द सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी इन द ट्रांसपोजिशन, ठीक है, ये हो रहा है कॉन रोटेशन से। अगर आप डिस रोटेशन कर रहे हो इसी को, लेट अस सपोज द डिस रोटेशन, तो डिस रोटेशन में क्या होगा, दोनों के दोनों ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, ये क्लॉकवाइज कर रहा, ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। ये जो मिथाइल ग्रुप है वो प्लेन में है, तो अगर ये ठीक है, ये आपका डिस रोटेशन है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो इसके अंदर जैसे आपने ये रोटेट किया तो मिथाइल ग्रुप प्लेन से जैसे पहले किया था क्लॉकवाइज किया आपने, तो CH3 ऊपर चला जाएगा, तो यू आर हैविंग CH3 हियर और H हियर, ठीक है। और क्योंकि इसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो, तो एंटी क्लॉक पहले हमने क्लॉकवाइज किया था कॉन रोटेशन में, तब CH3 नीचे गया था प्लेन से, अब एंटी क्लॉकवाइज करोगे, ठीक है, तो इस केस में ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा CH3 ग्रुप, यहां से ये यहां ऊपर आ जाएगा, सो वी आर हैविंग CH3 ग्रुप हियर,
CH3 and H. Okay. And if you see the stereochemistry in this case, दोनों का CH3 है। तो अगर आप ये देखते हो यहाँ पे, तो इस केस में so this will be cis, तो ये आपके पास cis प्रोडक्ट आ रहा है, ये वाला, ठीक है। So okay, so this one is cis and this one is trans. So this is the difference. Conrotation and disruption is making, we are getting stereochemically different products. आपके पास stereochemically दो अलग-अलग तरह के products आ रहे हैं, ठीक है। So that difference this one is making, ठीक है। So ठीक है, इसी तरह से आपका अगर hexatriene system आएगा, तो hexatriene system में भी so you will have so conrotation and disruption. So is it okay for you? समझ आ गया, क्योंकि ये चलने वाला है, FMO अप्रोच आएगा, FMO अप्रोच में आपको ये क्लियर होना चाहिए। ये connotation and distortion, I think it should be okay to you. अगर किसी का क्वेश्चन है then you can ask, किसी का अगर क्वेश्चन है कोई। ठीक है, so this is about connotation and distortion, and then we'll start with the one of the theory of this pericyclic reaction is a FMO approach, frontier molecular orbital approach. So this is frontier molecular orbital approach, ठीक है। और previously called it FMO approach, or this method was given by Foucault, or we also call it Foucault method, ठीक है। So now, so in this case, in the frontier molecular, frontier means the molecules at the end of front, ठीक है। जैसे आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, हम बोलते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, तो जो बैलेंस सेल में सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में रहता है, तो इसमें भी जो हम सिमेट्री डिस्कस करेंगे, so we will discuss the symmetry of only of the frontier molecular orbital, जो outermost orbital है, जो भरा हुआ है, ठीक है, सिर्फ उसकी सिमेट्री को डिस्कस करेंगे, ठीक है। so इसके भी जो है आपके पास कि the outcome, ठीक है, the outcome of the reaction will depends upon the symmetry of the frontier molecular orbitals, जो highest occupied molecular orbital आएगा, ठीक है, highest occupied molecular home, ठीक है, आएगा ये, ठीक है। now we can have, ठीक है, कि ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, तो जो ग्राउंड स्टेट में है वो तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया आपका, जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दैट विल बी द फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। सो ग्राउंड स्टेट में जैसे हमारे पास मान लो ब्यूटेडाइन सिस्टम है, सो ब्यूटेडाइन सिस्टम वी आर हैविंग दिस वन इज ब्यूटेडाइन सिस्टम, सो वी आर हैविंग 4 ऑर्बिटल्स, साइक्लोन के केस में चारों के चारों ऑर्बिटल्स की सिमेट्री सेम आ गई। देन वी आर हैविंग साइड 2, इन साइड 2 we are having one node, the plus minus minus. In side 3 we are having 2 nodes, 1 2 3 4, so plus minus minus plus minus, okay. And then in side 4 we are having 3 nodes, so node after each orbital plus minus, okay. So these are the 4 orbitals, okay. Now we go, this is a butadiene system. So in butadiene system, how many pi electrons we are having? Subhanjali, how many pi electrons we are having in butadiene? Subhanjali Srivastava. Yes sir. कितने pi electron है butadiene में? Hello sir. इसमें कितने pi इलेक्ट्रॉन है ब्यूटेडाइन सिस्टम में? ये सिस्टम बताया मैंने आपको। How many pi electron is it having? Sir butadiene में 4. Yes, so this is having 4 pi electron, ये 4 pi electron है। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं?
बोलिए, एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। सो इट मींस 4 में से 2 चलेंगे साई 1 में, 2 चलेंगे साई 2 में, ठीक है। सो ये आ गया और 4 से 4 आगे बाकी, तो ये साई 1 और साई 2 वी नो दैट दीज आर द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। और साई 3 साई 4 दे आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये आ गया अरेंजमेंट हमारे पास। सो नाउ इन दिस केस, so which one under thermal conditions, अगर ग्राउंड स्टेट में देखना आपने, ये जो ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट में which one is the highest occupied molecular orbital, कौन सा यार? साइड 2 से साइड 2 हाँ, it will be side 2, साइड 2 सर ठीक है। side 2 will be the highest occupied molecular orbital and side 3 will be लूमो so this will be lowest unoccupied molecular orbital. So this is highest occupied and side 3 will be lowest unoccupied molecular orbital. Okay. So this is under normal conditions. But when we do the photochemical reactions, तो photochemical reaction के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट जो मॉलिक्यूल है वो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एक्साइट होकर कहां से चला जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो फोटो सो दिस इज अंडर थर्मल कंडीशन। थर्मल कंडीशन को हम ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। और फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो व्हेन वी आर हैविंग फोटोकेमिकल कंडीशन, सो द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूल टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो यहां चला गया। नो व्हिच वन इज द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, साइड 3। हां, ठीक है। सो नाउ साइड 3 विल बिकम्स हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, ठीक है, ये बन गया। एंड which one is lowest unoccupied molecular orbital, it will be side 4, ठीक है। So then the scenario will change. So whenever we have to compare the frontier molecular orbital, जब हमने symmetry compare करनी है कि highest occupied molecular orbital का कौन सा है, lowest unoccupied molecular orbital कौन सा है, तो जब हम symmetry compare करेंगे, so that will depend, वो हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो if it is side 2, अगर हम थर्मल कंडीशन में कर रहे हैं, so side 2 will be the highest occupied molecular orbital and then we have to compare its symmetry, तब हम उसकी symmetry कंपेयर करेंगे, ठीक है। और lowest unoccupied molecular orbital side 3 आ जाएगा। और अगर हम photochemical condition में कर रहे हैं, then the electron will go to the first excited state, then the side 3 will be the highest occupied molecular orbital and psi 4 will be the lowest unoccupied molecular orbital, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। सो their symmetry matters, ठीक है। सो जो highest occupied molecular orbital है उसकी symmetry, so we have to see their symmetry, अगर वो ऑर्बिटल की symmetry ओवरलैप कर रही है through connotations, ठीक है, तो that reaction will be, ठीक है, symmetry allowed, ठीक है। अगर नहीं कर रही है then symmetry disallowed और symmetry forbidden, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पर फोटोकेमिकल कंडीशन में भी हम ऑर्बिटल्स की symmetry मैच करेंगे, ठीक है। अगर वो अलाउड कर रहा है, ठीक है, अगर दोनों ऑर्बिटल की symmetry मैच कर रही है, in that case it will be allowed, otherwise it will be symmetry forbidden, okay। तो or that will explain why we are getting only one product, because the other product is not a symmetry allowed नहीं है वो प्रोडक्ट, इसलिए नहीं बन रहा है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद, सो अगेन लेट अस स्टार्ट विद 4n pi electron system. So for 4n pi electron system, for example butadiene, तो butadiene के केस में, so we have to see the which one is the highest occupied molecular orbital, आपको वो देखना पड़ेगा पहले, ठीक है। So again that depends, so under thermal conditions, अगर हम थर्मल कंडीशन में रिएक्शन कर रहे हैं, सो थर्मल कंडीशन में, ठीक है, सो व्हिच वन इज द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो सिमेट्री ऑफ हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो इट विल बी साइड 2, ठीक है। और साइड 2 की सिमेट्री क्या है ब्यूटाडाइन में, सो वी नो दैट, क्योंकि हम इसी से डील कर रहे हैं, सो लेट अस डू इट, हम सिर्फ इसकी सिमेट्री करते हैं, सो ये आ जाएगा। So this one is, there is one node side में, so plus and minus, ठीक है। So this is the symmetry of side 2,
So we have to see. Okay. Yeah, yeah. Now we'll see. So we will apply two operations. So whether this reaction is possible through Cohn rotation or through, so we will see the conditions. कि DC rotation में क्या हो रहा है और Cohn rotation में क्या हो रहा है. ठीक है. So in this case we are applying a Cohn rotation. Okay. तो Cohn rotation में again we can see. So here अगर Cohn rotation करेंगे तो दोनों एक तरफ मूव करेंगे ये वाले. So this one is positive and this one is negative. ठीक है. So ये क्या हो रहा है कि ये ऑर्बिटल मूव करेगा. ठीक है. यहाँ से so let us suppose ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है. ये जो लीड वाला पार्ट है. तो जब Cohn rotation करेंगे तो ये दोनों आपस में जो लीड्स है इसके वो आपस में मैच कर रहे हैं. ठीक है. ये ऐसे घुमाएंगे तो आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. ठीक है. So you can see through Cohn rotation. So this one is positive, this one is negative, and then this one is positive, this one is negative. Okay. So you can see the orbital with the similar symmetry, they are facing each other. Okay. If they are facing each other, then we call it a symmetry allowed transition. This is a symmetry allowed. Okay. So it means under thermal conditions, okay, अगर highest occupied molecule, so the transition through Cohn rotation is allowed. आपका ये वाला प्रोडक्ट अलाउड है, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा. Okay. Similarly, let us see in the disk rotation. So what will happen in the disk rotation? So let us suppose this one is clockwise. So ये आ गया clockwise plus minus. Okay. And this one. So this one will be anti-clockwise. अगर anti-clockwise है, then you are having negative here and plus here. Okay. And you see the symmetry of the opposite orbitals. Okay, so this is positive, this is negative. So this transition is a symmetry orbital. तो ये symmetry orbital आ रहा है यहाँ पे. ठीक है. So this is under thermal conditions. Now let's go to the photochemical conditions. तो photochemical condition में क्या होगा? So photochemical condition में what happened? One of the electron from the highest occupied molecular orbital from psi 2 it will go to the psi 3. ये psi 3 में चला जाएगा. ठीक है. और psi 3 में अगर आप इन ऑर्बिटल्स की जो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स हैं इनकी अगर सिमेट्री देखोगे आप. ठीक है. So the psi 3 will be the highest occupied molecular orbital और इसकी जो सिमेट्री आएगी this will so positive, negative, negative and positive. Okay. So it means these orbital, so they will be facing each other. This is positive, negative and positive, negative. Okay. So these are the lobes of frontier molecular orbital. इसके lobes हैं. इनकी जो सिमेट्री हमने सिर्फ एक है, बाकी दो छोड़ सकते हैं. Okay. So now this is the highest occupied molecular orbital. Now again, we will apply two operations. One is through Cohn rotation. हम Cohn rotation से भी देखेंगे और इसको DC rotation से भी देखते हैं. Okay. So what will happen through the Cohn rotations and what will happen through the DC rotations? So in this case, so through Cohn rotations, so both they are moving in the same direction. So this one is positive, this one is negative, positive, negative. Okay. And through DC rotation, so positive, positive, negative, and negative. So now you can see. So in this case, these lobes they are facing each other. Okay, so this will be DC rotation will be symmetry allowed. So symmetry allowed, and this one will be symmetry forbidden. ठीक है. अब ध्यान से देखो थोड़ा सा कि जब हम थर्मल कंडीशन में कर रहे थे, so under thermal conditions, okay, so when it did Cohn rotation किया तो Cohn rotation was symmetry allowed and DC rotation was a symmetry forbidden. Okay, so Cohn allowed and DC symmetry
symmetry forbidded. But then under photochemical conditions, so photochemical conditions में because now the highest occupied molecular orbital will be psi 3. तो उस केस में the co-rotation will be symmetry forbidden and dis-rotation will be symmetry allowed. तो वो चेंज हो गया, अपोजिट हो गया वो, ठीक है. तो अब यहाँ से this will explain why you are getting different products under different reactions conditions. कि जब आप रिएक्शन फोटोकेमिकली कर रहे हो तो अगर यहाँ पे मान लो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर आपके स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं, ठीक है, सो डेफिनेटली जब आप कॉन-रोटेशन करोगे और डिस-रोटेशन करोगे तो उस केस में आपके प्रोडक्ट, क्योंकि कॉन-रोटेशन अभी इस केस में सिर्फ कॉन-रोटेशन से प्रोडक्ट बन रहा है, कॉन-रोटेशन में वो एक तरफ मूव कर रहे हैं दोनों लोब्स. तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके जो रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है, वो रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास वही प्रोडक्ट बनेगा, फिर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, डिसरोटेशन से नहीं बनेगा. लेकिन सेम रिएक्शन अगर आप फोटोकेमिकली करते हो तो फोटोकेमिकल में तो जो यहाँ पे कौन से बन रहा था वो डिसरोटेशन से बनेगा, तो उसकी जो प्रोडक्ट की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी दैट विल बी अपोजिट, वो उसके बिल्कुल अपोजिट आएगी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है. सो इट मींस कि द प्रोडक्ट आउटकम that is depending upon the symmetry of the frontier molecular orbitals. क्योंकि ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा है, because the orbitals with the opposite symmetry they are facing each other, so वो symmetry forwarding process हो रही है, इसलिए थर्मल कंडीशन में डिसरोटेशन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है. और उसी तरह से फोटोकेमिकल कंडीशन में कॉन रोटेशन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स है उनकी सिमेट्री मैच नहीं कर रही है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई सो दिस ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है. तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो हमारा रिएक्शन चल रहा है, सो दिस रिएक्शन इज ए रिंग फॉर्मिंग रिएक्शन. तो इसमें हमारा जो हम रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं, सो रिएक्टेंट हम मान कर रहे हैं दिस इज ए ओपन चेन पार्टनर, और ये रिएक्शन हमारा that is resulting into a cyclic chain, कि ओपन चेन से साइक्लिक चेन में जा रहा है ये रिएक्शन, ठीक है. तो इसकी सिमेट्री प्रेडिक्ट कर दी है मैंने इस केस में. सो दिस नाउ वी कैन आल्सो डू, मैंने बोला आपको कि क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, सो बोथ कैन बी रिएक्टेड. जो ओपन चेन हमारे पास सबस्ट्रेट है, ओपन चेन, ये रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, और ये साइक्लिक है, ये रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है. लेट अस सपोज वी आर प्रोजेक्टिंग इट इन दिस वे. तो अभी इस केस में हमारे पास जो क्लोज चेन है वो रिएक्टेंट बन गया, ये रिएक्टेंट है, और जो ये ओपन चेन पार्टनर है, ठीक है, ये ओपन चेन पार्टनर है, ठीक है. तो इस केस में नाउ अगेन वी कैन प्रेडिक्ट, ठीक है, which way the reaction will go, whether the reaction will go through con-rotation or through dis-rotation, वो डिपेंड करेगा आपका. तो इसमें तो हमने देख लिया कि ये हमारे पास है और 4 and 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. और 4 and 5 plus 2 ये आ गया, ये थर्मल आ गया, और फोटोकेमिकल आ गया, थर्मल और फोटोकेमिकल. तो इसमें हमने देख लिया ये कि जब थर्मल कंडीशन ली थी हमने, रिएक्शन वाज पॉसिबल थ्रू कॉन-रोटेशन. फोटोकेमिकल ली थी, तो फोटोकेमिकल में द रिएक्शन इट वाज पॉसिबल थ्रू डिसरोटेशन, ठीक है. ये टेबल बना रहे हैं हम लोग, तो ये इसमें डिसरोटेशन से बना था और थर्मल कंडीशन में कॉन-रोटेशन से बना था, ठीक है. अब यहाँ पर, ठीक है, अब ये अगर ये इस तरह से है हमारे पास सिस्टम, ठीक है, सो इट मींस कि ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म है, तो
So we are having positive, positive and negative, negative. Okay. So this will result into a open chain partner. Okay, open chain partner में results होगा. Okay. इसमें सिर्फ हम एक कंडीशन रखते हैं कि जो सिमेट्री कंजर्व होती है, सिमेट्री जो कंजर्व होगी दैट विल बी ऑफ द ओपन चेन पार्टनर. जो ओपन चेन पार्टनर है, ओपन चेन पार्टनर, और उसकी सिमेट्री के साथ हम वो दैट इज द रेफरेंस पॉइंट, हम उसकी सिमेट्री के साथ कंजर्व करते हैं इसको. ठीक है. सो लेट अस सपोज, ठीक है, सो दिस वन, अगर आप इसको देखोगे ये वाला, ठीक है, इज इट हैविंग मिरर प्लेन सिमेट्री और C2 सिमेट्री? कौन सी सिमेट्री है इसमें? C2 सिमेट्री है इसमें क्या? सुमन कुमार नाथ. सुमन सर. यस सर. हाँ, इसमें ये जो आपके पास है क्लोज चेन है, इसमें इज इट हैविंग C2 सिमेट्री है इसमें क्या? यस सर. यस. और मिरर प्लेन सिमेट्री? यस. ठीक है, तो इसमें दोनों ही है, ध्यान से देख लो उसको. ठीक है, अगर आप यहाँ से प्लेन पास करोगे तो इसमें मिरर प्लेन सिमेट्री भी आएगी, और तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस रखोगे यहाँ पे. परपेंडिकुलर एक्सिस जब इसको रोटेट करोगे 180 डिग्री से, सो इट इज अगेन हैविंग C2 सिमेट्री. दोनों की दोनों आ रही है, मिरर प्लेन सिमेट्री भी आ रही है और C2 सिमेट्री भी आ रही है. सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ये सिमेट्री है दोनों केसेस में. ठीक है. नाउ जो ये प्रोडक्ट में आपको पता है जब ओपन चेन पार्टनर बनेगा, सो दैट विल बी psi1 psi2 psi3 और psi4. और हम सिमेट्री देखेंगे हाईएस्ट अकोपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की. ठीक है, हाईएस्ट अकोपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो हाईएस्ट अकोपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो सिमेट्री अंडर वो दैट अगेन डिपेंड्स. सो लाइक अंडर थर्मल कंडीशंस. सो थर्मल कंडीशंस में जो हाईएस्ट अकोपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कौन सा होगा ब्यूटाडाइन में? Psi2. इट विल बी psi2. ठीक है, तो psi2 होगा. psi2 की सिमेट्री हमें पता है, तो प्लस प्लस एंड माइनस माइनस. ठीक है, सो दिस इज, सो इसका सिमेट्री एलिमेंट्स देखो, विच सिमेट्री एलिमेंट इज इट हैविंग मिरर प्लेन और C2 सिमेट्री? psi2 में कौन सा है? C2 है. C2 है. इट इज हैविंग C2 सिमेट्री. ठीक है, तो इसमें ये सिमेट्री का मिरर प्लेन सिमेट्री का एंटी सिमेट्री है. ठीक है, तो अब ये जो रिएक्टेंट है हमारा, रिएक्टेंट में दोनों की दोनों सिमेट्रीज है, प्रोडक्ट में सिर्फ एक सिमेट्री है. ठीक है, तो रिएक्टेंट को कोई प्रॉब्लम, रिएक्टेंट की तो जा सकती है सिमेट्री कोई भी. हमने बोला है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्रीज है या रूल्स ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री है, उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की दोनों की सिमेट्री कंजर्व होती है. कि जो सिमेट्री रिएक्टेंट की होगी वही सिमेट्री प्रोडक्ट की होगी. ठीक है, वो दोनों. तो इस केस में ये रिएक्टेंट है, इसमें तो दोनों है, प्रोडक्ट में सिर्फ एक सिमेट्री है. ये कौन सी? C2 सिमेट्री. ठीक है, नो C2 सिमेट्री. अब C2 वी हैव टू कंजर्व द C2 सिमेट्री. अगर अब हमें C2 सिमेट्री कंजर्व करनी पड़ेगी. ठीक है, हमें हम इस, बिकॉज दिस इज ए रिंग ओपनिंग रिएक्शन, तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन में we will open this ring in such a way so that the C2 symmetry of the product is conserved. वो रहनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट की सिमेट्री ऊपर उसमें जाएगी, हमें पता है प्रोडक्ट क्या है, उसमें हाईएस्ट अकोपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो अंडर थर्मल कंडीशंस C2 सिमेट्री. अब C2 सिमेट्री कहां पर कंजर्व होती है? इज इट थ्रू कॉमन रोटेशन और थ्रू डिसरोटेशन? वो आपको दिखना है. तो ये देखिए, ये मान लो आपका ये है, ये आपका देखिए. ठीक है, ये रिएक्टेंट है. तो रिएक्टेंट पे जब आप कॉमन रोटेशन लगा रहे हो, कॉमन रोटेशन लगा दिया. ठीक है, तो कॉमन रोटेशन में, ठीक है, दोनों को एक साइड में घुमा दिया. ठीक है, सो ये जैसे ये पॉजिटिव नीचे चला गया, और इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे पॉजिटिव नीचे चला जाएगा, नेगेटिव ऊपर आएगा. इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओगे पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा और नेगेटिव नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज कॉमन रोटेशन.
and let us suppose we are also trying distribution. तो ये distribution लगा दिया, ये distribution, तो distribution में दोनों सेम डायरेक्शन में, जैसे फर्स्ट ये आ गया और ये आ गया, ठीक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पर कौन सी सिमेट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी सिमेट्री आ रही है, इज इट मिरर प्लेन C2 प्लेन सर, मिरर प्लेन, ठीक है, ये मिरर प्लेन सिमेट्री है। और कौन रोटेशन में C2, तो यहाँ पर C2 आएगी, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हो उसको, ठीक है। तो जब भी आप चाहे whether it is a 4n pi electron system or 4n plus 2, so 4n pi plus 2 electron system, so in this case, so whenever you are doing a ring opening, जब भी आप ring opening करोगे तो whenever you do a con rotation, जब भी con rotation करोगे, con rotation में always C2 symmetry will be conserved, तो इसमें हमेशा C2 symmetry conserve होगी, ठीक है। और डिसोसिएशन में, क्योंकि डिसोसिएशन में आप दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हो, तो जो पॉजिटिव लोब है और नेगेटिव लोब है वो दूसरे को फेस करेंगे, सो इन दैट केस द मिरर प्लेन सिमेट्री विल बी कंजर्व, ठीक है, एंड C2 सिमेट्री विल नॉट बी कंजर्व, ठीक है। सो नाउ तो ये आ गया आपका कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ए of rotation with the symmetry, कि कौन सी रोटेशन कर रहे हो आप, कौन रोटेशन कर रहे हो तो वो C2 सिमेट्री के साथ, वो C2 सिमेट्री जा रहा है, और डिसोसिएशन कर रहे हो तो वो मिरर प्लेन सिमेट्री को कंजर्व कर रहा है। तो ये देख लिया आपने, ठीक है। अब इस केस में, ठीक है, इस केस में फिर से आ जाते हैं। सो वी नो दैट वी हैव टू, सो नाउ psi2 इज हैविंग द, psi2 में कौन सी सिमेट्री है, psi2 में it is having a C2 symmetry, ठीक है, psi2 में C2 है, so psi2 is having a C2 symmetry, so we have to conserve a C2 symmetry। तो C2 symmetry कैसे कंजर्व होती है, it's only conserved through con rotation, वो con rotation से कंजर्व होगी, ठीक है। so this ring opening will take place only through con rotation। तो जो ये रिंग ओपनिंग है अंडर थर्मल कंडीशंस, सो थर्मल कंडीशन में जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगा वो सिर्फ कॉन रोटेशन से होगा, ठीक है, डिसरोटेशन से नहीं होगा, क्योंकि डिसरोटेशन में आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी सिमेट्री नहीं कंजर्व हो रही है, क्योंकि ये psi2 की सिमेट्री है, ठीक है। तो जो हमने पहले क्या रिंग फॉर्मिंग किया, तो रिंग फॉर्मिंग में हमने देखा कि जब थर्मल कंडीशन है तो थर्मल कंडीशन में रिएक्शन कौन सी कंडीशन में हो रहा है, कॉन रोटेशन में, यहाँ पे दिस वाज रिंग फॉर्मेशन। और रिंग ओपनिंग में देख रहे हैं, रिंग ओपनिंग में वी आर अगेन कंपेयरिंग द सिमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इस केस में भी व्हेन वी आर डूइंग द रिंग ओपनिंग, सो रिंग ओपनिंग होगी ओनली थ्रू द कॉन रोटेशन, बिकॉज़ C2 सिमेट्री नीड टू बी कंजर्व्ड, क्योंकि जो प्रोडक्ट है ओपन चेन पार्टनर उसका C2 सिमेट्री है। सो यू गॉट इट, ठीक है। सिमिलरली नाउ वी कैन मूव ऑन टू under photochemical conditions. So the next one is photochemical conditions. Photochemical conditions में photochemical conditions में इस केस में now what happen, the electron will excite from the high structure molecular orbital to the lowest occupied molecular. So in this case the psi3 will becomes highest occupied molecular orbital photochemical condition में, और psi3 का आपको symmetry elements पता है, ठीक है। So this is psi3, positive, negative, positive. So it's having two nodes.
तो ये साई 3 की, और साई 3 में सिमेट्री देखोगे कौन सा सिमेट्री एलिमेंट्स है उसमें, C2 और M। राजेश कोरे सिग्मा प्लेन्स, कौन सा है? सिग्मा मिरर प्लेन। प्लेन, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो दिस इज हैविंग ए मिरर प्लेन, तो इसमें इसमें मिरर प्लेन सिमेट्री है, ठीक है। और मिरर प्लेन सिमेट्री को अगर कंजर्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ये कौन सी रोटेशन देनी पड़ेगी? This. We have to do the disk rotations, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि only mirror plane will conserve the disk symmetry, तो जो disk symmetry है उसको सिर्फ mirror plane conserve करता है। So in this case so we are having again, तो जो open chain बन रहा है आपके पास, तो थोड़ा disk rotation बन रहा है, so प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इसमें भी mirror plane symmetry है और प्रोडक्ट में भी mirror plane symmetry है जब disk rotation करेंगे, ठीक है। तो ये मिरर प्लेन सिमेट्री को प्रिजर्व कर रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट में यहाँ पे देखो आपने, रिएक्टेंट में दोनों सिमेट्रीज है, मिरर प्लेन भी है और C2 सिमेट्री भी है। अब प्रोडक्ट की सिमेट्री डिसाइड कर रही है कि व्हाट विल बी द, आप कौन सी पाथवे फॉलो करोगे, वेदर द रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू द कॉन रोटेशन और थ्रू द डिस रोटेशंस वहां पे। तो दोनों केसेस में आपने फॉरवर्ड रिएक्शन भी देख लिया, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में भी जब आपने किया था तो जो फोटोकेमिकल कंडीशन में जो रिएक्शन हुआ था दैट वाज पॉसिबल ओनली थ्रू द डिस्क रोटेशन, और जब आपने रिंग ओपनिंग किया तो रिंग ओपनिंग में भी जो रिएक्शन हो रहा है, सो दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस ओनली थ्रू द थ्रू द डिस्क रोटेशन, ठीक है। सो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, एनी डाउट? सर मैं पूछ रही थी कि ऊपर और नीचे वाला रिएक्शन तो एक ही है ना, मतलब रिवर्सल, एक रिंग ओपनिंग एक रिंग क्लोजिंग। हाँ, ऐसे तो दोनों ही अलग अलग, हम तो सिर्फ दो कंडीशन में देख रहे हैं ना, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, तो दिस प्रोडक्ट कैन मूव इन बोथ वे, इसमें तो दोनों सिमेट्रीज है प्रोडक्ट, सॉरी जो अब हमने रिएक्टेंट बना दिया है, तो ये तो क्लॉकवाइज भी जा सकता है, एंटी कौन रोटेशन से भी जा सकता है और डिस रोटेशन से भी, ठीक है। लेकिन हम निगेट करेंगे, जैसे थर्मल कंडीशन में देखा हमने पहले, तो हमने ये बोला कि थर्मल कंडीशन में ये सिर्फ कौन रोटेशन होगी, डिस रोटेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी डिस रोटेशन? नहीं सर मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आपने जो ऊपर दो रिएक्शंस लिखे ना रिवर्सिबल साइन करके, तो वो दोनों तो एक ही है ना? हाँ एक ही है, हाँ वही, हाँ एक ही है। मैं बोल सिर्फ जो पर्सपेक्टिव है या जिस एंगल से आप देख रहे हो, जैसे इस केस में जब शुरू में थे तो आपने सीधा देख लिया कि जब रिएक्टेंट आपका ओपन चेन पार्ट रहा था, आपने सीधा देख लिया कि आपने लूप्स को जो सिमेट्री है, फ्रंटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उठाया आपने, साइड में उठाया पहले थर्मल कंडीशन में, उनको देख लिया आपने रोटेट करके, कौन रोटेशन से दिखा अच्छा इनकी लूप्स की सिमेट्री में मैच कर रही है, सो दिस इज सिमेट्री डिसल और दिस वन इज सिमेट्री अलॉट। फिर फोटोकेमिकल में आपने इलेक्ट्रॉन ऊपर करके साई 3 बन गया आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें भी आपने पहले कौन रोटेशन देखी फिर डिस रोटेशन देखी, एंड इन दैट वे यू कैन इजीली प्रेडिक्ट। इस केस में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा। अब इस केस में आपके पास जो क्लोज चेन है, तो इट कैन गो आइदर वे, कौन रोटेशन से भी जा सकता है, डिस रोटेशन से भी जा सकता है इसमें, लेकिन कौन सा जा रहा है, ठीक है, वो डिसाइड करेगा ये जो प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट की जो सिमेट्री है वो कौन सी है, जो प्रोडक्ट में जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी क्या सिमेट्री है, ठीक है। तो वो सिमेट्री डिसाइड करेगी वेदर कि ये जो रिंग ओपनिंग होगी, whether this ring opening will be through the con rotation or through the dis rotation, तो वो ये डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये लग गया, ये हो गया क्लियर, इसमें तो नहीं किसी का क्वेश्चन कोई? ओके सर डन। तो इसी तरह से फटाफट दिस इज ए ब्यूटेडाइन सिस्टम, हम हेक्साडाइन सिस्टम में भी कर सकते हैं, तो वो हमारे पास एक दूसरा सिस्टम आ जाएगा एग्जैक्टली सेम वे में। तो हेक्साडाइन में क्या है फर्क, सिर्फ नाउ यू आर हैविंग
सो दिस इज एग्जैक्ट लाइन सिस्टम, ठीक है। तो इस केस में भी अगर आप देखोगे, सो which one will be the highest under thermal conditions? Thermal conditions में Side 3. so highest occupied molecular orbital will be side 3, ठीक है। तो वो अगर आपको क्लियर है, बिल्कुल मैंने ये बताया था आपको कि जो लोब्स बनाने पड़ेंगे आपको 3 4 5 6, ठीक है। सो दिस इज साइड 1, साइड 2 में एक नोड आएगा और साइड 3 में दो नोड्स आएंगे, ठीक है। So this one is plus 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 minus minus minus. This one is plus plus minus minus plus plus. Okay. तो ये आपकी सिमेट्री बनेगी। तो आप जब आप बार-बार करोगे तो आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कि जो हमने देखा भी है कि जो साइड 1 है, साइड 1 में हमेशा मिरर प्लेन रहता है, साइड 2 में सीटो सिमेट्री आती है, साइड 3 में मिरर प्लेन आता है। तो आप जो लास्ट वाले, हमें सिर्फ लास्ट वाले लोग से मतलब है, तो साइड 1 में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, साइड 2 में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, साइड 3 में अगेन मिरर प्लेन सिमेट्री आएगी, तो दोनों लोब्स जो टर्मिनल लोब्स हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। साइड 4 में अगेन सीटो सिमेट्री होगी, तो एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, ठीक है। तो वो फटाफट निकाल सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट लाइन सिस्टम है। तो अंडर थर्मल कंडीशन वी नो दैट साइड 3 इज द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस केस में नाउ वी हैव टू सी द so highest occupied molecular orbital, इसकी सिमेट्री मिरर प्लेन सिमेट्री है। हम सिर्फ इस ऑर्बिटल, इन दोनों ऑर्बिटल्स की लोब्स की सिमेट्री देखेंगे, ठीक है। so this is having mirror plane symmetry. So now in this case again, so here we are doing a con rotation. अगर हम con rotation करते हैं, con rotation में क्या होगा, so both the lobes they are moving in the same direction, अगर same direction में मूव कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, and this one is negative, this one is positive. तो इस केस में कॉन रोटेशन से the opposite lobes they are facing each other, so this is a symmetry forbidden process. Similarly disrotation, इस केस में disrotation देखेंगे, so disrotation में so positive positive negative, It's 11 o'clock. okay. So in this case, so this same lobes they are facing each other, okay. So this one is symmetry allowed. So thermal condition में जब आपके पास 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। So this is 4n pi plus 2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और इसको 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है, टोटल। So इस केस में now we are having disrotation में आपका वो सिमेट्री अलाउड है, so this transition is allowed, और इस केस में connotation, ठीक है। अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस, फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, so which one will be the highest occupied molecular orbital? I4. So it will be psi4 now, ठीक है, psi4। और अगेन आपको पता है कि psi4 में जो सिमेट्री आएगी that will be C2 सिमेट्री, so C2 सिमेट्री है प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये C2 सिमेट्री आएगी उस केस में psi4 में। तो अगेन you will see, so again you apply to operation, so con operation and dis। तो जब आप con करोगे तो con के केस में ये अपोजिट है, so प्लस प्लस माइनस माइनस। तो इस केस में दिस विल बी asymmetry allowed, ये अलाउड ट्रांजिशन आएगी। और जब डिस करोगे आप, so डिस रोटेशन में so प्लस माइनस, ठीक है। so this will be a symmetry forbidden, ठीक है, symmetry forbidden आएगा और ये allowed आएगा इस केस में प्रोसेस, ठीक है। so now, ठीक है,
So thermal condition में the product was forming through these rotations 4 and pi electron system में, और photochemical condition में the product was forming through the Cohn rotations. तो इसके थ्रू आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अपोजिट हो गया बिल्कुल, जो 4 and pi में आपको प्रोडक्ट मिल रहे थे, यहाँ पे Cohn रोटेशन से मिल रहा था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री अलाउड आ रही थी, ठीक है। लेकिन जब 4 and plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेगा आप, तो उस केस में आपका प्रोडक्ट डिसरोटेशन से बनेगा और फोटोकेमिकल कंडीशन में Cohn रोटेशन से बनेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हेन द open chain is converting into the cyclic chain, ठीक है। And what about the reverse reactions? रिवर्स रिएक्शंस में क्या होगा? तो रिवर्स रिएक्शंस के केस में अगेन ठीक है, तो जब आप ये देखोगे तो इस केस में अगेन इट्स हैविंग बोथ मिरर प्लेन एज वेल एज आपके पास C2, दोनों के दोनों सिमेट्री आएंगे इसमें भी, ये वाला, ठीक है। नाउ यू हैव टू सी कि अंडर थर्मल कंडीशंस, तो जब आप थर्मल कंडीशन लगा रहे हो तो थर्मल कंडीशन में आपका जो रिंग ओपनिंग होगा, सो रिंग ओपनिंग वेदर इट विल बी थ्रू कॉन्वर्टेशन और डिसरोटेशन, वो नंदिता क्या होगा आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब आप थर्मल कंडीशन है, तो थर्मल कंडीशन में जो रिंग ओपनिंग होगा इट विल बी थ्रू कॉन और डिस, सर कौन कॉन रोटेशन से, ठीक है। सो कॉन रोटेशन से होगा, क्यों होगा कॉन रोटेशन से? सर सिमेट्री अलाउड देखेंगे ना सिमेट्री प्रोडक्ट की। बहुत बढ़िया। तो आपका प्रोडक्ट है हेक्साट्राइइन, ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कौन सी सिमेट्री है? थर्मल कंडीशन में, थर्मल कंडीशन में हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? साई 3 मिरर प्लेन है ना। साई 3, बहुत बढ़िया, साई 3। और साई 3 में कौन सी होती है? सर मिरर प्लेन होती है। मिरर प्लेन, बहुत बढ़िया, मिरर प्लेन। तो क्या जो कॉन रोटेशन है क्या वो कंजर्व करेगा मिरर प्लेन सिमेट्री को? क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो कॉन रोटेशन लगाते हैं हम लोग, अगर इसमें हमने कॉन रोटेशन लगा दिया, डिस होगा सर, डिस में होगा कंजर्व। ठीक है, समझा गया ना? हाँ जी सर। अगर हम इसमें कॉन लगा देते हैं तो ये पॉजिटिव ऊपर चला गया, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तब तो इसमें C2 रोटेशन आ गई, C2 सिमेट्री। हाँ जी, यस। सो दिस विल बी डिस रोटेशन। ये थर्मल कंडीशन में जो रिंग ओपनिंग होगी इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू द डिस रोटेशंस, ठीक है। और इसी तरह से जब फोटोकेमिकल कंडीशन दे रहे हो हम लोग, फोटोकेमिकल कंडीशन में राजश्री दास, राजश्री दास, अनम्यूट योरसेल्फ। तो सो गई क्या? बहुत बढ़िया। कपिल शर्मा। यस सर। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में अब आपके पास प्रोडक्ट कैसे बनेगा? कौन रोटेशन से बनेगा या डिस रोटेशन से? सर कौन से बनेगा, क्यों? सर सिमेट्रिक अलाउड होगा ना, हम्म, साई 4 में C2 होगी। हाँ यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि फोटोकेमिकल कंडीशन में जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कौन सा बनेगा? इट विल बी साई 4, ठीक है। और साई 4 में C2 सिमेट्री विल बी कंजर्व्ड। तो C2 सिमेट्री विल बी कंजर्व्ड ओनली थ्रू द कॉन रोटेशन। तो कॉन रोटेशन में कंजर्व करेगा इसको, ठीक है। सो 4 and pi के केस में द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म थ्रू कॉन रोटेशंस। तो इसमें कॉन रोटेशन में बनेगा प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? ठीक है। सो तो ये मैं
मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ. So let us suppose this one is CS3 and H. This one is CS3 and this one is H. ठीक है. ये आपने जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा. So let us suppose ठीक है. दोनों केस में फोटोकेमिकल थर्मल कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, सीज और ट्रांस. ठीक है. तो ये हम लोगों ने करना है कि व्हाट इट कैन बी, वेदर इट इज अ सीज प्रोडक्ट और अ ट्रांस प्रोडक्ट. ठीक है. और किसी को कोई डाउट हो इसमें? क्लियर हो गया? ठीक है. Okay, so mark your attendance and then get ready for the next class.